Hello student, today I am going to start a new chapter, that is admission of a partner. Admission of a partner means when a new person join to the farm, to the existing farm. जो पुराना फार्म का साथ कोई नया पार्टनर, कोई नया आदमी आता है, उसको हम लोग बोलते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. तो इसमें एक चीज़ आता है, मीन्स फर्स्ट उसमें नंबर ऑफ पार्टनर इंक्रीज हो जाता है. तो जब नंबर ऑफ पार्टनर इंक्रीज हो जाता है, जो पुराना पार्टनर होता है उनका शेयर कम हो जाता है. That means when someone join to the existing or old farm, the partners who were in the farm, now their share will be changed. So change means now they have to sacrifice. उन लोग को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तभी तो नया दैट मीन्स जो भी आया है पार्टनर उनको दैट मीन्स उसको फायदा होगा. सो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट how much the old partners is or are sacrificing. It is not sure that each and every old partner will sacrifice. ये जरूरी नहीं है हर old partner sacrifice करेगा. Sometimes it happens, ऐसे होता है कभी कभी old partner sacrifice नहीं करते हैं, कभी कभी gain हो जाता है, फायदा हो जाता है. तो whatever it may be, so first step we have to calculate the sacrifice ratio. Sacrificing. So sacrificing ratio find करने के लिए हम लोग को दो रेशियो चाहिए. One is old ratio, another is new ratio. Suppose new ratio it is not given, we have to calculate the new ratio. हम लोग को new ratio calculation करना पड़ेगा. So this is the first case. Second, whenever anyone come to the business टू बी ए पार्टनर, जब कोई एक आदमी बिजनेस में आता है पार्टनर बनने के लिए, तो इन ऑर्डर टू बी ए पार्टनर ही जनरली ब्रिंग्स सम अमाउंट टुवर्ड्स कैपिटल, कुछ पैसा लेकर आता है कैपिटल के लिए, एंड ब्रिंग अनदर अमाउंट बिसाइड्स कैपिटल विच इज नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल. तो प्रीमियम फॉर गुडविल होता क्या है, ड्यू टू हिज एडमिशन, उसका एडमिशन होने से पुराना पार्टनर को कुछ नुकसान होता है. टू कॉम्पेंसेट द लॉस ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स ड्यू टू हिज एडमिशन ही ब्रिंग सम अमाउंट विच इज नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल. क्लियर? दैट मीन्स दिस अमाउंट ऑफ गुडविल इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. इसका मतलब जो सेक्रीफाइस करेगा उसको प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा, जो सेक्रीफाइस नहीं करेगा उसको प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं मिलेगा. अनदर थिंग, सपोज जो ज़्यादा सेक्रीफाइस करेगा उसको ज़्यादा शेयर मिलेगा, जो कम सेक्रीफाइस करेगा उसको कम मिलेगा. क्लियर? तो एडमिशन ऑफ पार्टनर ये होता है, दैट मीन्स कॉन्सेप्ट. तो एडमिशन ऑफ पार्टनर होने के लिए दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ लिखा है सेक्शन 31, ये लिखा है सेक्शन 31 of Indian Partnership Act, of Indian Partnership Act, Indian Partnership Act, Partnership Act 1932. इसमें कुछ मेंशन है, whenever a person will become a partner of a firm or whenever he will come to the business, that means there must be generally in two cases. First cases, it is agreed in the partnership deed. Suppose if it is so agreed in the partnership deed, if it is so agreed in the partnership deed, agreed in the partnership deed, partnership deed आप लोग को पता है, that means the condition, that means the terms and conditions among the old partners. So it is, if it is agreed in the partnership deed, if it is so agreed in the partnership deed, partnership deed, and nature of partnership deed, you know, it is optional in nature. Suppose they have no partnership deed, उनका बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, और कोई नया दैट मीन्स पर्सन न्यू वन
wants to join the firm. So in these cases, all the old partners must agree. That means all the old partners they should agree. सब पार्टनर राजी हो जाएंगे, then only that means he can be or she can be a partner of the firm, should be agreed. ये दोनों केसेस है ये. और अभी जस्ट नाउ आई टोल्ड यू टू बी ए पार्टनर, दैट मीन्स वेन एवर ए पार्टनर, when that means he wants to be a partner, or whenever one will join in a firm as a partner, he generally brings two things. First, some amount of capital, some amount towards capital. Another, that means amount for premium for goodwill, amount towards premium for goodwill, premium for goodwill. क्लियर? ये जो गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस मीन्स जिनका नुकसान हो रहा है, इन ऑर्डर टू कॉम्पेंसेट देम, उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग दिस अमाउंट एंड इट विल बी शेयर्ड अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो. But this amount, the capital, whatever the amount he will brought towards capital, it will remain in business. ये business में रहेगा. Clear? So here, first of all, we have to calculate. That means the share. Suppose share already दे दिया है. Suppose let me say that means suppose A and B are partners. A and B are partners. A and B are partners. They are प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. सपोज उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, उनका बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2. क्लियर? सपोज शी join the firm, she admit to the firm for 1/5 share of profit. सपोज इतना ही हम लोग को इंफॉर्मेशन है, तो इसमें से हम लोग को पहले कैलकुलेट करेंगे. सपोज क्वेश्चन में बोला जाएगा कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन करो. देखो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग तो है. When that means they were only two partners, A and B were partners. Their ratio it is decided. When C will come to the business, so again we have to calculate what will be the profit sharing ratio of A, B and C. हम लोग को अभी कैलकुलेशन करना पड़ेगा A, B और C का क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. अभी इंफॉर्मेशन दे दिया C एडमिट टू द फर्म फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट. 1/5 मीन्स उसको 1/5 मिलेगा. किसी भी चीज को सपोज हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट उसको मिलेगा, दैट इज 1/5. बाकी जो रह गया 4 पार्ट मीन्स 4/5, वो किसको मिलेगा? ए और बी को मिलेगा. तो इस केसेस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. हाउ विल कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? हम लोग कैसे कैलकुलेशन कर देंगे? क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मीन्स वी शुड नो व्हाट इज द शेयर ऑफ सी. सी शेयर, सी का शेयर कितना है? दैट इज 1/5. सी को 1/5 मिलेगा. रिमेनिंग जितना रहेगा, रिमेनिंग शेयर कितना रहेगा? रिमेनिंग शेयर अभी बोला सपोज किसी चीज़ को 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 पार्ट को हम लोग बोलते हैं 1/5.
रिमेनिंग कैसे फाइंड करोगे, दैट मीन्स यू सी ना 5 - 1 4, दैट मीन्स रिमेनिंग कितना रह गया 4/5। ये जो रह गया ये ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो व्हाट विल बी द ए शेयर, ए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक का क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, देखो जितना अभी बचा हुआ है रिमेनिंग है उसी को ए और बी में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्योंकि सी का शेयर तो ऑलरेडी इट इज गिवन, सी को तो 1/5 मिलेगा। बाकी जो रहेगा उन लोग इस रेशियो में, उनका ओल्ड रेशियो में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। तो ए का न्यू शेयर कितना होगा, दैट मीन्स 4/5। ये जो बचा हुआ सरप्लस रिमेनिंग उसमें से ए को कितना मिलेगा, ए का रेशियो 3:2 मीन्स ए और बी का मीन्स 3/5, तो 4/5 इंटू 3/5 तो 12/25 ये हो गया। बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो, बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इससे भी रिमेनिंग कितना था 4/5 इंटू 2/5, उसका शेयर कितना था 2/5, तो कितना हो गया 8/25। मीन्स हम लोग जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन करेंगे उस टाइम हम लोग न्यू कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, सी का एडमिशन का बाद ही तो कर रहे हैं, तो सी का भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। सी बिजनेस को आने के बाद हम लोग नया रेशियो फाइंड कर रहे हैं, तो सी शेयर ऑल्सो इट विल बी इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो व्हाट इज सी शेयर, देखो सी का शेयर तो इट इज ऑलरेडी इट इज गिवन, सी का शेयर 1/5। क्लियर, देखो डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल, यहाँ देखो 25, यहाँ 25, यहाँ इसका डिनोमिनेटर 5 है, तो हम लोग 5 मल्टीप्लाई कर देंगे 5, तो एक कितना गया 5/25। देखिए आप लोग, दैट मीन्स जब रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो रेशियो कैलकुलेशन करने का टाइम आप देखिए डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल, यहाँ देखो 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, इसका मतलब इनका बीच में रेशियो कितना हो गया 12:8:5, ये हो गया उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस रेशियो दैट मीन सपोज क्वेश्चन में बोला गया कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिस इज द वे टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। विल स्टार्ट फ्रॉम द दैट मीन्स न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर को कितना शेयर मिल रहा है, कितना रिमेनिंग है, रिमेनिंग से ओल्ड पार्टनर को कितना कितना मिलेगा, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देन यू सी नाउ when the new partner will come to the business, first of all we'll calculate that means the valuation of assets and liabilities। नया पार्टनर जो बिजनेस को आएगा उस दिन उसको तो पता रहना चाहिए कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटीज है, कौन सा एसेट का कितना वैल्यू है, कौन सा लाइबिलिटी कितना है। सो इन ऑर्डर टू दैट वी हैव टू प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम लोग एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर, पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद हम लोग दैट मीन्स देखो वो आने के बाद हम लोग नया देखेंगे, उस टाइम हम लोग देखेंगे ओल्ड पार्टनर का कितना कितना दैट मीन्स कैपिटल हो रहा है, क्योंकि दे हैव इन्वेस्टेड कैपिटल दैट मीन्स फ्यू ईयर्स एगो, और 1 साल पहले 2 साल पहले हम लोग कैपिटल इन्वेस्ट कर चुके हैं। जिस दिन वो बिजनेस में आया उस दिन पुराना पार्टनर का कैपिटल कितना कितना है उसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और अभी बोला व्हेन एवर ही विल कम ही विल दैट मीन्स बिकम ए पार्टनर, तो उसका जब वो पार्टनर बनेगा उसका पास पूरा राइट्स आ जाएगा, राइट्स ऑफ ए पार्टनर। तो उसका दैट मीन्स ही कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, ही कैन टेक पार्ट इन मैनेजमेंट एक्टिविटीज, दैट मीन्स एज ए पार्टनर का जितना राइट्स होता है उसका राइट्स मिलेगा, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी उसी हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। तो उस दिन जिस दिन वो दैट मीन्स ज्वाइन करेगा, जब हम लोग बना रहे हैं दैट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उस दिन हम लोग को बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो ये हम लोग का दैट मीन्स
रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, बैलेंस शीट कैसे बनाना है, दैट मीन्स ग्रेजुअली यू विल नो इट। तो फर्स्ट थिंग दैट मीन्स हम लोग को कुछ जर्नल एंट्री पास करना पड़ता है। जर्नल एंट्री क्या है? दैट मीन्स व्हेन एवर ही विल कम, जब वो आएगा बिजनेस को, आई टोल्ड टू थिंग्स, ही विल ब्रिंग टू थिंग्स, मीन्स एक कुछ अमाउंट, सम अमाउंट ही विल ब्रिंग फॉर कैपिटल एंड सम अमाउंट टुवर्ड्स प्रीमियम फॉर गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज शेयर का हिसाब से। सपोज जिस दिनों बिजनेस को आएगा, दैट मीन्स सपोज गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेशन होगा, गुडविल ऑफ द फर्म के हिसाब से उसको कितना गुडविल के लिए देना है, इट विल बी कैलकुलेटेड एंड गुडविल अमाउंट को इट विल बी शेयर बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो उसके लिए अलग अलग रूल है। तो पहले कॉमन जर्नल एंट्री क्या होता है, जैसे हम एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स in a firm sharing profits in the ratio of sharing profits in the ratio of 3:2, ratio of 3:2. She admit as a new partner, she admit as a new partner for 1/6 share of profit. सब कुछ लिखा है 1/6 share of profit, 1/6 share of profit. She brought rupees 1 lakh towards capital and rupees 20,000 towards premium for goodwill, premium for goodwill. क्लियर? सपोज क्वेश्चन में दिया कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड पास्ट जर्नल एंट्री। सो वन थिंग आई विल एक्सप्लेन यार, एक ही चीज बताऊंगा। पास्ट जर्नल एंट्री सपोज दे दिया, पास्ट जर्नल एंट्रीज एंड कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो इसी में बता दूंगा, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये क्वेश्चन हम दैट मीन्स फ्रेम किया, दैट मीन्स इसको हम एक्सप्लेन करूंगा। देखो ए और बी पार्टनर थे, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 3:2। सी बिजनेस को आया, उसका शेयर कितना है 1/6। सी 1 लाख कैपिटल के लिए लाया और 20,000 गुडविल के लिए लाया। हम लोग को बोला कि जर्नल एंट्री पास करो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट मीन्स कैलकुलेट करो। तो फर्स्ट हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन कर रहे हैं। जैसे अभी जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन इट ऑन द सेम वे, आई विल कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम सी, न्यू पार्टनर, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है देखो, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी का शेयर कितना है देखो, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/6 में सी को 1/6 मिलेगा। जो रिमेनिंग रहेगा ए और बी को डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कौन सा रेशियो में, उनका रेशियो 3:2 में। तो पहले आप फाइंड करोगे रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट, रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट। रिमेनिंग कैलकुलेशन करने का तरीका बता दिया था। देखो 1/6 है तो 6 से 1 को माइनस कर दो 5, तो लिखो 5/6, ये हो गया रिमेनिंग शेयर। इस रिमेनिंग शेयर को ए और बी, उसी में से ए को कितना मिलेगा, उसी में से बी को कितना मिलेगा, वी हैव टू कैलकुलेट इट। सो विल कैलकुलेट ए
न्यू प्रॉफिट एज न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट, न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये को कितना मिलेगा? देखो ये का न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट अभी कितना है 5/6, आउट ऑफ 5/6 हाउ मच यू विल गेट इंटू 3/5, 3/5 मीन्स उनका रेशियो 3:2 था, सो इसमें करोगे 3/5। क्लियर? इसको इसे कर दो 15/30। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन दैट मीन देयर आर सम स्टूडेंट हु फेस द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। सीधा इसे मल्टीप्लाई कर दोगे। सिमिलरली बी न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी का न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? देखो बी न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट, देखो 5/6 इंटू कितना हो गया 2/5, तो ये हो गया 10/30। क्लियर? आई ऑलरेडी एक्सप्लेन बिफोर फ्यू मिनट्स अगो, हम बोला था हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों कैलकुलेशन कर रहे हैं? नया पार्टनर आने के बाद हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। जब नया पार्टनर आने के बाद हम लोग कैलकुलेशन करें, इसका मतलब नया पार्टनर का भी शेयर को हम लोग को लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे सी का शेयर, सी का शेयर इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड, सी को कितना शेयर मिलेगा 1/6। देखो डिनोमिनेटर जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक आप उसको रेशियो लिखना नहीं है। देखो इसका डिनोमिनेटर 30, इसका डिनोमिनेटर 30, इसमें भी आपको डिनोमिनेटर 30 लाना है, तो 6 में कितना मल्टीप्लाई करने से 30 होगा 5, ये हो गया 5, इसका मतलब 5/30। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया? देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया? यहाँ देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 15:10:5। क्लियर? सपोज आपका गलत है ना सही है, आप खुद ही जान सकते हो। सपोज ये सबको ऐड करोगे, देखो डिनोमिनेटर का बराबर होगा, जैसे 15:10:5, तो 15 + 10 25, 25 + 5 = 30 हो गया। तो इसको भी आपको दैट मीन्स जानने के लिए एक तरीका है, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। अभी क्वेश्चन में बोला था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग फाइंड कर लिया। अभी जर्नल एंट्री पास करना है। जर्नल एंट्री पास करने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि सी का दैट मीन जर्नल एंट्री सी आने के बाद ही हम लोग जर्नल एंट्री पास करें। सी कितना पैसा लाया था? कैपिटल के लिए 1 लाख, प्रीमियम के लिए 20,000। क्लियर? सो टोटल कितना पैसा बिजनेस को लेकर के आता है? 1,20,000। तो आप लोग क्या करोगे? यू विल ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है। जर्नल एंट्री फॉर्मेट बना करके आप उसी हिसाब से आपको जर्नल एंट्री पास करना है। जर्नल एंट्री फॉर्मेट आप बना लीजिए, जर्नल एंट्री फॉर्मेट में लिखना है। याद रखिए, आप जो भी जर्नल एंट्री पास करेंगे जर्नल एंट्री फॉर्मेट में बनाएंगे। क्लियर? तो यहाँ लिखेंगे सपोज आइदर यू कैन राइट कैश और यू कैन राइट बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टोटल 1,20,000, टोटल 1,20,000 लाए। 1,20,000 किस लिए आए? टू उसका कैपिटल के लिए लिखेंगे तो टू सी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के लिए कितना? 1 लाख। गुडविल के लिए कितना लाया? लिखो टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, इसके लिए 20,000 लाया, 20,000। डोंट फॉरगेट टू राइट द नरेशन, नरेशन लिखना है। शी ब्रॉट अमाउंट टुवर्ड्स कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना है। शी और अमाउंट ब्रॉट टुवर्ड्स कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। ये नरेशन लिखना है। क्लियर? देखिए, आप कैपिटल को कभी भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? हम लोग दोनों रेशियो को कंपेयर करके करेंगे।
जैसे हम लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना था, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, एक हम कैलकुलेशन करके बता रहे, ए एंड बी का ओल्ड रेशियो कितना था 3:2। न्यू रेशियो कितना हो गया, देखो न्यू रेशियो हम लोग का कैलकुलेट किया ए बी एंड सी, हम लोग कितना कैलकुलेट किया था, यहाँ कैलकुलेट किया था 15:10:5 कैलकुलेशन किया था हम लोग, 15:10:5 इतना कैलकुलेशन किया था। क्लियर, इसको आप दैट मीन्स 3:2:1 भी कर सकते हो, 5 में डिवाइड करके कर सकते हो। याद रखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो सिर्फ पुराना पार्टनर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, नया पार्टनर का कुछ नहीं, नया पार्टनर को तो अभी आ रहा है बिजनेस में, तो हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेशन करेंगे फॉर द ओल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सपोज हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्लियर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए का पहले कितना मिलता था, देखो 3/5, अभी कितना मिल रहा है, देखो 15/30, क्लियर, 15/30 मिल रहा है, क्लियर। और दैट मीन्स इसको हम अब बोला था, इसको आप 5:2:1 भी कर, सॉरी 3:2:1 भी कर सकते हो, 5 में डिवाइड करके। सपोज कोई नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये 30 हो गया, 30 को 5 में डिवाइड करोगे 6 3 जा 18 माइनस 15, ये हो गया कितना 3/30। सो बी का कितना हुआ, देखो पहले कितना मिलता था 2/5, अभी कितना हुआ देखो 10/30, क्लियर, ये हो गया 30। तो इसमें कितना होगा 6, इसमें डिवाइड करोगे 6 × 2 12 माइनस 10, ये कितना हो गया 2/30। देखो हम लोग का डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना होगा 3:2। ये हम आपको एक बताया, दिस इज द प्रोसेस। लेकिन अब देखो यहाँ ओल्ड शेयर जितना था सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी इतना ही हुआ, तो इसमें से आपको दैट मीन्स एक ट्रिक्स पता चलेगा, जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोलेगा कौन कितना सेक्रीफाइस किया, तो आपका ओल्ड रेशियो वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, और इसी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आप गुडविल को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये हो गया पहला जनरल एंट्री। सेकंड जनरल एंट्री ये होगा, देखो आपको कैलकुलेशन करने के लिए हमें बताया सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्लियर। सपोज क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, अभी बोला सपोज क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था, सी का एडमिशन हुआ, सी का शेयर दे दिया, लेकिन बताए नहीं ए कितना सेक्रीफाइस किया, बी कितना सेक्रीफाइस किया, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेक्रीफाइसिंग अमाउंट रेशियो ऑफ ए एंड बी, कुछ भी नहीं दिया, दैट मीन्स द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, उसी को हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानेंगे। तो व्हाट आई टोल्ड यू, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 को हम लोग इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट कितना है प्रीमियम 20,000, क्लियर। टू ए कैपिटल अकाउंट, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट। देखो 20,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, दैट मीन्स यू सी नाउ 20,000 इंटू 3/5, तो 5×4 जब 20, ये 4,000 इंटू 3, इसका मतलब ए को उसमें से कितना मिलेगा 12,000 मिलेगा, बी को कितना मिलेगा 8,000। लेकिन देखो जब ए को मिल गया 12,000, बी को मिल गया 8,000, तो इन लोग इस पैसा को विदड्रॉ भी कर सकते हैं, बिजनेस भी रख भी सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। सपोज उन लोग विदड्रॉ करेंगे, आधा विदड्रॉ करेंगे, आधा भी विदड्रॉ कर सकते हैं, पूरा विदड्रॉ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो इस अमाउंट को दैट मीन्स नेक्स्ट ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, सपोज बोला जाएगा
दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ गुडविल रिटेन इन द बिजनेस, बिजनेस में ही रहेगा। इसका मतलब ए का जितना मिला था उसका कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, बी का कैपिटल अकाउंट उसका अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? तो दैट मीन्स अभी एक नेक्स्ट वीडियो में हमको कुछ दैट मीन्स कैलकुलेशन करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन करके हमको बताऊंगा।